Right. So the article is inductor, and what is inductor? Inductor is basically a device. It's a device like a capacitor, like a resistor. It's a device. And what's so common between a inductor, capacitor, and a resistor as a device? All the three are supposed to be devices which are made from a conductor. A resistor, that means a device which basically opposes the amount of current flow in the circuit. Technically speak करें तो it is basically an opposition to the flow of the current. Capacitor as a device is supposed to be a device which is used for the storage of the electrical energy associated with a charge. Now, passively we have moved on to the article of the magnetism, and so we also understand there must be some energy associated with the magnetic field also. जैसे एनर्जी एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, द सेम मैनरिज्म देयर मस्ट बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद द magnetic field also, because wherever there are supposed to be the field lines, there must be the concept of the energy associated with it. So there must be the device which is able to store that particular energy, and that device which basically stores the magnetic field energy or the energy associated with the magnetic field is known as an inductor. So it's basically just an analog behavior to a capacitor. The capacitor stores electrostatic field energy, and inductor stores the magnetic field energy. And so this article will ultimately lead us to the article of the magnetic energy density. जैसे हम electrical energy density के expression बना चुके हैं, half epsilon naught into E square dependent upon the electric field. Same तरीके से हम यहाँ पर expression development करेंगे for the magnetic energy density. So ये article कहाँ जाएगा, where it is going to move upon, वो मैंने आपको brief in दिया है, and now we are going to start from the basic of this particular article. अगर हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इंडक्टर के बारे में बात करें, सो इंडक्टर इज काइंड ऑफ अ डिवाइस व्हिच बेसिकली ऑपोजिट्स द वेरिएशन ऑफ द करंट इन द सर्किट. लिखते हैं इसको, इट्स अ डिवाइस व्हिच ऑपोजिट्स द वेरिएशन ऑफ द करंट अक्रॉस द सर्किट. अब सर्किट को आप क्लोज लूप बोल सकते हो, या आप सर्किट को एज solenoid बोल सकते हो. That means a closed behavior is supposed to be a circuit. So a device which opposes a variation of the current across a loop or a closed circuit, that is defined as an inductor. Now variation of current means di upon dt. So हम उसको भी mention out कर लेते हैं. The variation of current means di upon dt, और di upon dt से ध्यान आता है that if the current is varying across a coil or a solenoid, what is going to happen? The magnetic field across this is going to vary. और अगर magnetic field vary करेगी, so then what is going to happen? The magnetic flux is going to vary. And if the magnetic flux is going to vary, then I think we are going to lead the article back to the Faraday laws of electromagnetic induction, या फिर Lenz law. Okay, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि word को which is opposing means, oh, that's the basic language of the Lenz law. जहाँ पे Lenz law में क्या कहता है कि इस तरीके से करंट या EMF इंड्यूस होती है such that it tries to oppose the basic cause that produces it. पर जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली वो वेरिएशन को अपोज करता है. तो शायद ये इस तरीके की बात हो गई कि शायद वो चाहता है कि करंट स्टेबल हो जाए, करंट ना ज्यादा बढ़े ना कम हो, और स्टेबल हो जाए. सो इस आदत को, इंडक्टर को हमने यूज करना है. वी हैव टू यूज दिस फॉर द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी अल्टीमेटली. जैसे हम कैपेसिटर को सबसे पहले किस तरीके से सोचते हैं कि उसकी प्लेट्स के ऊपर हम चार्ज को एक्यूमुलेट करेंगे, तो धीरे धीरे बाद में पता चलता है कि बेसिक आइडिया एनर्जी का था. उसी तरीके से शुरुआत जो है इंडक्टर के आर्टिकल की किस तरीके से हो रही है, दैट इज एज अ डिवाइस व्हिच इज गोइंग टू बी द वर्किंग बिहेवियर बेस्ड अपॉन Faraday laws of electromagnetic induction और Lenz's law. शुरुआत तो वहीं से हो रही है, अल्टीमेटली आर्टिकल एनर्जी पे ही जाएगा. So what is the working principle or the property of this particular device? जितना हमने डिस्कस आउट करा, it is based upon the Faraday laws of electromagnetic induction. So it's based on the Faraday's laws of electromagnetic induction,
एंड ऑफ कोर्स फैराडे लॉ हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड होता है लेंस लॉ से। और लेंस लॉ क्यों जरूरी होता है वो हमें पता है, बिकॉज लेंस लॉ basically explains to us the existence of the Newton third law. Lenz's law is in accordance with the conservation of energy. इसलिए लेंस लॉ इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉ के साथ में। तो इसका मतलब ये जो आइडिया हम पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, जैसे मैंने बोला, ये एनर्जी के ऊपर जाएगा, बिकॉज द लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, सो इंडक्टर इज अ ब्यूटीफुल डिवाइस। नाउ अब ये दिखती कैसे है? दिखती कैसे है मतलब इट कैन बी एनालॉगस। जैसे कैपेसिटर अलग अलग तरीके से दिखता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अलग अलग तरीके से होता है। तो फिर ये आर्टिकल भी हमने करा हुआ है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, दोबारा से, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड करता है उसके साइज पे, शेप के, ज्योमेट्री पे, मीडियम पे जो प्लेट्स के बीच में है, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज ऑन द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऑन द सिमिलर बिहेवियर यहां पर हम क्वेश्चन को डेवलप करेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। सो यू हर्ड इट राइट, that what is supposed to be the property over here? The property over here is supposed to be defined as inductance. So what is an inductor? Inductor is supposed to be a device, and the device is supposed to be based upon a property, और property क्या inductance वो कहाँ से आती है? It comes from the idea of the Faraday laws of EMI. अब किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमने इस प्रॉपर्टी को, पढ़ना कैसे है? सो पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीके को हम बोलते हैं एज अ सेल्फ इंडक्शन या self inductance, and the second way out is to study the mutual inductance. Now self inductance और mutual inductance का मतलब क्या है? एक तो अपने बारे में सोचना, और एक दूसरा कम्युनिटी के बारे में सोचना, या उनके बारे में सोचना जो हमारे आसपास है। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कौन सी होती है, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो आइडिया भी बिल्कुल सेम है। एक है सेल्फ इंडक्टेंस जो कि अपने अंदर जो चेंजेस हैं, अपने अंदर जो फ्लक्स चेंजेस है उसकी वजह से डेवलप होगा, और एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि बेसिकली जो नेबरिंग कॉइल होगी उसके अंदर फ्लक्स चेंजेस की वजह से यहां पर ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होगी। सो हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही है, लेकिन म्यूचुअल पे जाने से पहले सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में सोचना होगा। रीजन हम इस बात पे बिलीव ऑन करते हैं दैट कि अगर सबसे पहले हम सेल्फ बिहेवियर नहीं रखते हैं तो म्यूचुअल बिहेवियर हम कर नहीं सकते हैं। ये इस बात का बेसिक होगा। धीरे धीरे जब लेक्चर्स बिल्डअप होंगे तो हमें इस बात का मतलब समझ में आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी बेसिकली रिलाइज ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी, और इस वजह से हमें सेल्फ इंडक्टेंस को ही स्टडी इन करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि अपनी कॉइल में, मतलब एक जो कॉइल आपको गिवन होगी उस सेल्फ कॉइल में वेरिएशन ऑफ करंट है, उसकी वजह से वेरिएशन ऑफ फ्लक्स है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसी कॉइल के अंदर कि वो उस वेरिएशन ऑफ फ्लक्स को अपोज करे। दोबारा से, उसी कॉइल में करंट है, उसी कॉइल में वेरिएशन ऑफ करंट है, उसी कॉइल में वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, और उसी कॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही अक्रॉस जो वेरिएशन ऑफ फ्लक्स है उसको अपोज करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जो अपने अक्रॉस वेरिएशन ऑफ करंट या वेरिएशन ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और आइडिया तो ऑफ कोर्स फैराडे लॉ से ही है। और ये कैसे हो रहा है, कैसे कब हो रहा है कि जैसे स्विच का ऑपरेशन है डीसी सर्किट में, जैसे डीसी सर्किट, अभी हमने एसी सर्किट को नहीं देखा है, तो यहाँ पे स्विच था जिसको हमने इस समय क्लोज इन करा है एट t=0, अ वेरी इंस्टेंट एट विच द स्विच इज सपोज्ड टू बी क्लोज। तो क्या होगा, उस इंस्टेंट से पहले करंट नहीं था और उस इंस्टेंट पे करंट आ जाएगा। सो दो टर्म्स आएंगी, दोनों टर्म को ध्यान से सुनना। एक तो आएगा करंट, क्योंकि सर्किट में अब करंट फ्लो करेगा, अंडरस्टूड है। सेकेंड टर्म जो आएगी दैट इज सपोज्ड टू बी di/dt। दो अलग अलग टर्म्स है, एक है करंट और दूसरा है वेरिएशन ऑफ करंट। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी लगेगी। रेजिस्टेंस क्या करेगी, करंट का जितना अमाउंट है उसको कम करने की कोशिश करेगी, वो एक स्टेडी प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं दैट इज सपोज्ड टू बी di/dt। अब di/dt क्या कर रही है, वेरिएशन ऑफ करंट क्रिएट कर रही है। देखो स्विच कर ऑन करने से पहले करंट नहीं था, स्विच ऑन करने के बाद करंट है। इसका मतलब वो मिली सेकेंड्स में, जितने समय में हमने स्विच को ऑपरेट करा उतने समय में देयर वाज अ राइज ऑफ करंट व्हिच इज di/dt। इसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज सपोज्ड टू बी द इंडक्टेंस। और क्योंकि यहाँ पे कोई दो कॉइल्स तो है नहीं, एक ही कॉइल है,
तो करंट भी उसी कॉइल में है, वेरिएशन ऑफ करंट भी उसी कॉइल में। बात समझ में आ रही है? करंट भी इसी कॉइल में है और वेरिएशन ऑफ करंट भी इसी कॉइल में है। सब कुछ इसी कॉइल में, कोई सेकेंडरी या प्राइमरी कॉइल्स नहीं है, दो कॉइल्स नहीं है, एक ही कॉइल है। तो ये कॉइल अंदर ही अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप करेगी जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? तो मेंटेन ए स्टेट। मेंटेन ए स्टेट मतलब भाई जिस तरीके से अगर कोई रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहे, कोई मोशन में है तो मोशन में रहे। तो इसको भी ये आदत है किसके क्रॉस में करंट अगर फ्लो कर रहा है ना तो वो स्टेडी फ्लो करे, और अगर नहीं कर रहा है तो ना करे। इसको करंट से दिक्कत नहीं है या करंट के ना होने से दिक्कत नहीं है, इसको करंट के वेरिएशन होने से दिक्कत है। एंड देन दिस प्रॉपर्टी कम्स अलाइव। अब सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट कैसे करेंगे? वी विल डिनोट दिस बाय द लेटर कैपिटल एल। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में बाद में आऊंगा, अभी मैं सेल्फ इंडक्टेंस की ही बातें कर रहा हूं। तो तब ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी इसके अंदर, और वो क्या करेगी? वो इस तरीके से डेवलप होगी ताकि वो जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है, इंक्रीजिंग करंट है, उसको अपोज करे। या फिर ये तब डेवलप होगी जब आप स्विच को ओपन करेंगे, जैसे यहां पे स्विच क्लोज हो और मैंने इसको ओपन कर दिया, तो तब क्या होगा? अरे करंट तो था ही, अब करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं स्विच को ओपन कर दूंगा, यहां तो मैंने स्विच को क्लोज करा था और मैंने यहाँ पे स्विच को ओपन कर दिया, तो अगर मैंने स्विच को ओपन कर दिया अब तो क्या होगा? वो पहले करंट था, अब नहीं है, तो DI अपॉन dt आ जाएगा। और DI अपॉन dt क्या होगा? वो DI अपॉन dt अब डिक्रीज कर रहा है, मतलब करंट अब क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सो DI अपॉन dt अब नेगेटिव बोला जाएगा। तो पहले DI अपॉन dt पॉजिटिव हो गया और अब DI अपॉन dt नेगेटिव हो गया। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें पता है कि वी आर इनटू द लेंजीज लॉ। इसका मतलब डीसी सर्किट में इंडक्टर बिहेवियर दो इंस्टेंट पे आएगा। डीसी सर्किट में इंडक्टर बिहेवियर कब दो इंस्टेंट पे आएगा? एट द टाइम व्हेन द स्विच इज गेटिंग क्लोज्ड एंड एट द टाइम व्हेन द स्विच इज गेटिंग ओपन। बीच में अगर स्विच क्लोज्ड है अभी तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट है, करंट स्टेडी है। करंट स्टेडी होगा तो DI अपॉन dt 0 होगा, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। रेजिस्टेंस लगती रहेगी क्योंकि करंट है, पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो हमें डिफरेंस पता चल गया रेजिस्टेंस में, इंडक्टर्स में। रेजिस्टर्स क्या करते हैं? बेसिकली करंट को अपोज करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे रियोस्टेट करता है, रेजिस्टेंस बॉक्स करता है। यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या करती है? वेरिएशन ऑफ करंट को अपोज करती है। So how do we symbolize it? We symbolize it by, or how do we see it? How do we represent? दिखती कैसे है? तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं via this coil, like this. वो आप बोलोगे सर जो सोलेनोइड की तरह है, yes, हम बोलेंगे जैसे इंडक्टर। आज तक हम इसको सोलेनोइड कॉइल की तरह बोलते आए थे, अब ये सिंबल हमारे लिए क्या है? इंडक्टर है। सो दिस इज द सिंबलाइजेशन डायग्राम ऑफ इंडक्टर। लेटर जो हम यूज करेंगे वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L यूज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बाद में M यूज करेंगे। जैसे कैपेसिटेंस के लिए C यूज करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए R यूज करते हैं। मैंने आपको इस बारे में भी पहले बताया था दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देयर आर 3 अल्फाबेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं LCNR। दैट्स इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। सो 3 लेटर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, LCNR। उसमें से L इज द थर्ड अल्फाबेट बेसिकली, राइट? सो C और R हम कर चुके हैं। सो वी आर इन द मिडस्ट ऑफ लर्निंग दैट। ऐसा यूनिट होगी इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ दिस इज सपोज्ड टू बी टेकन एज हेनरी एंड रिटन एज कैपिटल H। प्रैक्टिकली जैसे हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं कि वो माइक्रोफैरेड में होता है, चार्ज की बात करते हैं वो माइक्रो कूलम में होता है, सेम तरीके से प्रैक्टिकली जब आप इसको क्वेश्चंस में चेक करोगे वैल्यूज में, सो इट विल अपीयर टू यू एज मिली हेनरी। नाउ व्हाट्स इट्स रिलेशन? अब इसका रिलेशन किससे बनाना है? तो बोलेंगे पहले सोच लो कि हुआ क्या। स्विच क्लोज करा या ओपन करा, उससे क्या हुआ? DI अपॉन dt आया, उससे क्या हुआ? वेरिएशन ऑफ फ्लक्स हुआ। सो बेसिक आइडिया क्या है? वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। तो पहले तो फ्लक्स होगा ना, तो ही वेरिएशन ऑफ फ्लक्स होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू गो बैक टू द सेम आइडिया कि सबसे पहले फ्लक्स होना चाहिए तो ये आइडिया आगे बढ़ेगा, और अगर फ्लक्स होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी अपने आप आएगी। So what is the idea of the relation with the flux? That the flux across the coil is directly proportional to the current across the coil. ये तो बात बिल्कुल सही है। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी,
मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं। That a flux across a given coil is proportional to the current passing through that particular coil. Pretty easy idea, pretty understood idea. अब हम क्या करेंगे, नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉइल। तो कॉइल और लूप में क्या फर्क होता है हमें पता है। लूप में एक ही टर्न होता है और इन कॉइल इज अ लूप ऑफ मेनी टर्न्स। सो वी यूज्ड टू राइट दिस एज नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स कैसे आता है, जब सारे नंबर ऑफ टर्न्स को हम यूज कर लेते हैं। So that is proportional to the current across the same coil. एक ही कॉइल की बात हो रही है, कोई दो कॉइल्स है ही नहीं, तो इसलिए बार बार उस बारे में मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, so we introduce the constant as equal to L. So what is L? It behaves as a constant. So it's like a constant of proportionality. It's like a constant over there. जैसे कि हम कैपिटल C को एक कांस्टेंट टर्म बोलते हैं आफ्टर डिजाइनिंग, वैसे ही कैपिटल L will behave as a constant term but after you design it. First of all you need to design it. जैसे कैपेसिटेंस डिजाइन है वैसे इंडक्टेंस को डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमने बोला था कॉइल्स बड़ी शेप्स की होती है, एक स्पाइरल कॉइल होती है, एक सर्कुलर कॉइल होती है, एक सोलिनॉइडल कॉइल होती है। सो या शेप चेंज हो सकता है, रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकती है, सर्कुलर कॉइल हो सकती है, व्हिच मींस दैट वी कैन हैव द वेरियस शेप्स एंड साइजेस। हेंस for every such shape and size we must have a specific value of the inductance. So it is going to behave as a constant after construction. अब नेट फ्लक्स को लिखने का तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया, that should be n into phi should be equal to L into Y. So what is a phi in this? Phi is a flux which is associated with the single turn. So n into phi क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा। And so if you are wishing to write L, that should be equal to n into phi upon I. This is the expression for the self-inductance. But then once again, L is supposed to be a constant term. तो इसका मतलब अगर आप करंट को चेंज करोगे तो L की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो L की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब फ्लक्स और करंट आपस में रिलेटेड हैं। और वो कांस्टेंट क्या है, L। पर I या फ्लक्स चेंज करने से, करंट चेंज करने से L पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो कंस्ट्रक्शनल बिहेवियर है। एंड देयरफॉर वी कैन मेंशन दैट L डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, कोई डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी जरूर करंट पे डिपेंड करती है, वेरिएशन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है, लेकिन L की जो वैल्यू होती है वो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। द सेम आइडिया जैसे कैपेसिटर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज से ही एसोसिएटेड होती है, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आती है और कहानी आगे बढ़ती है। इन द सेम मैनरिज्म यहाँ पे करंट नहीं होगा तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फिर फील्ड नहीं आएगी, फ्लक्स नहीं आएगा, कहानी नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो आई पे डिपेंड नहीं करता है। Now, where does a Faraday law creeps in over here? Of course, Faraday law आएगा जब फ्लक्स के आगे की कहानी बढ़ेगी। फ्लक्स के आगे की कहानी क्या? वेरिएशन ऑफ फ्लक्स एंड वेरिएशन ऑफ द नेट फ्लक्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉइल की बातचीत हो रही है। So now the article is for embedding the Faraday law in this idea. आइडिया तो सिंपल फ्लक्स का था, पर हम चाहते हैं कि Faraday law भी आए साथ में। तो हमने क्या करा, वो हमने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करा। So what is the expression? That is flux, that is a net flux, is supposed to be equal to L into I, and we know E is supposed to be equal to d phi upon dt by the Faraday law. Lenz law लगाओगे तो minus b आ जाएगा। So if we differentiate this particular term, so that should be equal to as d upon dt into L into I, ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उससे हमें थोड़ी कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है कि L is a constant, so L will pop out of the differentiation. So L into di upon dt, that becomes your expression, क्योंकि L तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। So that is L into di upon dt. So सारा आइडिया किसके ऊपर आ गया? वेरिएशन ऑफ करंट के ऊपर, जहां से हमने आर्टिकल को शुरू करा था। तो बीच में फ्लक्स एक जरिया बन गया। दोबारा से बीच में फ्लक्स एक जरिया बन गया बातों को समझने का। बेसिकली आइडिया वापस से कहां पर आ गया, जो मैंने शुरू के 5 मिनट में समझाने की कोशिश करी। दैट इज अ वेरिएशन ऑफ करंट। वो कब हो रहा है? जब आप स्विच को क्लोज करें या ओपन करें, बीच में नहीं हो रहा है। बीच में स्टेडी स्टेट है, डी अपॉन डी टी 0 होगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी या ये इंडक्टेंस बिहेव नहीं करेगी।
So it is going to behave only when there is supposed to be the variation of current, di upon dt. और साथ में अगर आप यहाँ पे लेंस लॉ लेकर आना चाहते हो फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टेटमेंट, इट ऑपोजिट्स द वेरिएशन इन करंट, सो हेंस बाय द लेंस लॉ, या फिर आप बोले किताबों के हिसाब से लेंजीज लॉ, सो वी शुड हैव E is equal to minus of d phi upon dt, and that should come as equal to minus of L into di upon dt. और ये है क्या? E is supposed to be सर induced EMF या फिर potential difference. So that's the potential difference across the inductor VL is equal to minus of L into di upon dt. माइनस आपको बताएगा कौन सा हाई पोटेंशियल पर होगा, कौन सा लो पोटेंशियल एंड होगा इंडक्टर का. पॉसिबल है ना कि ये वाला एंड पॉजिटिव हो, ये वाला एंड नेगेटिव हो. ये रिवर्स भी पॉसिबल है ना कि ये जो इंडक्टर बना हुआ है तो ये वाला एंड नेगेटिव हो, ये वाला एंड पॉजिटिव हो. तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो ये लेंस लॉ के थ्रू पता चलेगा. सिर्फ आपको ये जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो फिर यहां से आपको हो जाएगा VL का मैग्नीट्यूड कितना है, L into di upon dt. तो बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल तब आएगा जब उसके अक्रॉस वेरिएशन ऑफ करंट हो. अगर वेरिएशन ऑफ करंट नहीं है तो ये आइडिया डेवलप नहीं होगा. हर बातें शुरू हमेशा वीकली होती है. वीक मतलब WEAK वाली तो बहुत वीकली शुरू होती है कि भाई देखो स्विच ऑन करा, करंट आया, वेरिएशन ऑफ करंट हुआ, फिर सडनली कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है. वो फ्लक्स हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन हुआ, फिर ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई. तो ऐसा है कि अब इलस्ट्रेशन ले, एग्जांपल ले लेते हैं इसका. बहुत इजी सा एग्जांपल देखना पड़ेगा. एग्जांपल है क्या? एग्जांपल क्या है कि हमारे जो पुरानी चीजें हैं ना उसके साथ में इसको एम्बेड कैसे करें. पुरानी बातें मतलब बैटरी है, रेजिस्टेंस है. अच्छा पहले तो सिंबल से देख लें कि दोनों बताए हुए हैं यहाँ पे. ये क्या है? अच्छा ये रेजिस्टेंस, और ये क्या है सर? ये इंडक्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम्स, और इंडक्टेंस की क्या? हेनरी. मुझे प्रैक्टिकल कौन सी होती है? मिली हेनरी. और फिर देखते हैं सवाल क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VMN. ये आपको निकालना है. सर्किट में करंट कितना जा रहा है, इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर. There is a 1 ampere current in this particular branch, as you can see this given है यहाँ पे 1 ampere. एक्स्ट्रा क्या given है? That the current is increasing at the rate 2000. क्या बोला है? Current is increasing at the rate of 2000 amperes per second. This is the rate at which the current is increasing. ये क्या मतलब हुआ? मतलब 2000 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है. दिस इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये डिवाइस है, जो भी यहाँ पे डिवाइस है, एंड देन व्हाट वी हैव डन इज कि हमने यहाँ पे एक स्विच अप्लाई कर रखा है और इस तरीके से ऑफ स्विच को क्लोज कर रहे हो. सो व्हाट इज अ रफ टाइम ऑफ क्लोजिंग अ स्विच? तो हमने बोला अराउंड मिली सेकेंड. मान लो स्विच क्लोज करने से पहले करंट 0 था और बाद में जो स्विच हमने जब क्लोज करा तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी. फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं. और इस क्लोजिंग एक्टिविटी में जितना टाइम हमें लगा डेल्टा डी, वो टाइम हमें लगा 1 मिली सेकेंड फॉर एग्जांपल. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द DI अपॉन dt माय डियर? दैट विल बी इक्वल टू जो स्विच क्लोज करने के बाद करंट आया कितना? 2 एम्पियर. पहले कितना था? 0 एम्पियर. कितना समय लगा? 1 मिली सेकेंड. 1 मिली सेकेंड मतलब 1 into 10 power minus 3 सेकेंड. So how much is this particular value become? 2000 ampere per second. देखो करंट की वैल्यू बहुत कम ही है. इनफैक्ट काफी ज्यादा है. 2 एम्पियर काफी बड़ा करंट होता है पर देखने में तो कम है. लेकिन जो DI अपॉन dt है, दैट्स अ स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी, बिकॉज इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2000 एम्पियर पर सेकेंड. जबकि करंट उसके सामने सिर्फ कितना लग रहा था? दैट वाज सिंपली 2 एम्पियर. So DI upon dt becomes a very strong property during the operational activity of the switch. उसी इंस्टेंट पे. सो अब ठीक है भैया, हमें पता चल गया. अब क्या करें? ये एक वर्ड है जिसके आपको ध्यान रखना है, करंट इज इंक्रीजिंग. ये ध्यान रखिएगा. मतलब DI अपॉन dt पॉजिटिव है. ओके, तो क्या करें फिर? तो फिर सर्किट दोबारा बना. सर क्यों सर्किट को दोबारा बनाना है? क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको इंडक्टर को पोटेंशियल डिवाइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? सर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि अभी हमने बनाया. That is minus of L into DI upon dt. अच्छा तो पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं. बिल्कुल लिखो. VL is equal to L into DI upon dt. वैल्यू लिखते हैं. L की वैल्यू कितनी है? 2 मिली हेनरी. That means 2 into 10 power minus 3.
इनटू DI अपॉन DT, वो कितना है 2000 एम्पियर पर सेकेंड, सो इनटू 2000 क्या हुआ, ओ सर ये तो कैंसिल हो गया, 4 वोल्ट रिजल्ट आ गया सर। इसका मतलब दिस इंडक्टर बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ करंट इज एबल टू जनरेट एन ऑपोजिशन ऑफ 4 वोल्ट। भले ही अपने आप को सर्किट में अपनी प्रेजेंस को फील कैसे करवाएगा, आपको कैसे फील होगा कि वो सर्किट में प्रेजेंट है, जब वेरिएशन ऑफ करंट हो। अगर करंट नहीं वेरी कर रहा होगा तो फिर ये लगा दो आप सर्किट में, ये बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा सर्किट में, इट विल बी जस्ट बिहेविंग एज अ कंडक्टिंग वायर if there is not a variation of current, but if there is a variation of current then it is going to show the presence। और कितनी, वो डिपेंड करेगा कितनी एल की वैल्यू, कितनी DI अपॉन DT है, वो हमने देख ली कितनी आ रही है 4। अब देखना है पोलैरिटी कैसे लगाओगे, पोलैरिटी कैसे लगाओगे। तो हमने देखा भाई जो करंट था सर्किट में वो तो इस तरीके से आ रहा था, किधर, लेफ्ट से राइट को। तो अगर ये सेम तरीके से पोलैरिटी आ जाता है ताकि वो इस करंट को सपोर्ट करेगा, तो फिर तो लेंस लॉ डिसओबे हो गया, क्योंकि करंट तो इंक्रीज हो रहा है। और फिर ये किस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा ताकि वो इंक्रीज होते हुए करंट को अपोज करे। एंड हेंस द पोलैरिटी इज सपोज्ड टू बी जनरेटेड इन दिस मैनरिज्म, ताकि वो ये जो करंट आ रहा है उसको अपोज करे, ना कि उसको सपोर्ट करे, राइट। सो इट इज ऑपोजिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, ताकि अगर मतलब इसमें से अगर करंट निकले फ्यूचर में तो वो कैसे निकलता, इट वुड हैव बीन फ्रॉम हियर। तो वो जो एग्जिस्टिंग करंट आ रहा था उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, एंड हेंस द पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर मैनरिज्म। वही माइनस साइन का मतलब है। तो हमने दोनों बातें देखी, एक तो उसकी वैल्यू कितनी है वो तो हमें फैराडे लॉ से मिल गई, और क्योंकि वो अपोज करता है तो वो लैंग्वेज भी हमने यूज करनी थी पोलैरिटी को चेक इन करने में। तो हमने पोलैरिटी को भी चेक इन कर लिया है, राइट। तो बाकी सर्किट हमारा बनके तैयार हो चुका है, और अब बड़े आराम से हम Vm माइनस Vn निकाल लेते हैं पोटेंशियल इक्वेशन लिख के। सो लेट्स राइट द रिजल्ट Vm। अब आगे बढ़े हम लो से हाई पोटेंशियल, सो प्लस ऑफ 4 वोल्ट, फिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल फॉल, सो माइनस ऑफ 1 into 2। फिर आगे बढ़े हम, सो हाई टू लो पोटेंशियल आ गया, तो हाई टू लो पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल विल फॉल, सो माइनस ऑफ 1 वोल्ट, राइट। और फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी थी जो हमने निकाली थी, 4 वोल्ट। तो फिर से कैसे क्रॉस करें, हाई से लो पोटेंशियल, हाई से किस पे, लो पे, सो दैट शुड बी माइनस ऑफ 4 वोल्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम 3 वोल्ट वाले पे पहुंच गए, कैसे, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव पहले है पॉजिटिव बाद में है, सो हेंस प्लस ऑफ 3 वोल्ट। और फाइनली हम कहां पे पहुंच गए, एन पे पहुंच गए हैं। सो वी आर एबल टू जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एम एंड एन। सो Vm माइनस ऑफ Vn, अब चेक ऑन कर लो, ये 4 and 4 यहाँ से कैंसल्ड है, और -2 -1 -3 एंड +3 ये पूरा कैंसल्ड है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी एज इक्वल टू 0 वोल्ट। बोलोगे कि सर हमेशा आएगा, नहीं हमेशा नहीं आएगा, दिस इज जस्ट अ कैटेगरी। इस समय जिस तरीके से वैल्यू सेटअप है उस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो अब दोनों पहलू दिखाने होते हैं मुझे कि दो एक्टिविटी है, स्विच क्लोजिंग एंड स्विच ओपनिंग। तो एक समय DI अपॉन DT क्या करता है, इंक्रीज, और दूसरे समय क्या करता है, डिक्रीज। तो ये इलस्ट्रेशन मैंने किस तरीके से कराई है, जिसके अंदर DI अपॉन DT क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, मतलब उसकी वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव थी, राइट। ये उसकी इलस्ट्रेशन थी। सो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं अब इसके अंदर हमारी लैंग्वेज सेम है, दैट द करंट is changing at the rate of 2000 एम्पियर पर सेकेंड। पर चेंज में दो बातें छुपी होती है, राइज या फॉल। तो अभी करंट क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2000 एम्पियर पर सेकेंड। इट एक्सप्लेन्स टू मी दैट नाउ DI अपॉन DT is going to be negative। इसका मतलब इंडक्टर अपने आप को सर्किट में प्रेजेंट कैसे करेगा, इन ऑर्डर टू अपोज द फॉलिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट को वापस स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा था शायद उस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करेगा। तो देखते हैं कि अब फाइनली सर्किट में इसको किस तरीके से हमें पोलैरिटी शो करनी पड़ेगी। सो मेरे ख्याल से अब इसकी जगह हम पोलैरिटी किस तरीके से शो करेंगे, दैट शुड बी लाइक दिस, इन दिस मैनरिज्म वी शुड जनरेट द पोलैरिटी। क्यों, ताकि करंट बढ़ना है अब, क्योंकि करंट डिक्रीज करने लगा था, क्वेश्चन ने बोला है करंट वो डिक्रीजिंग। सो करंट किस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में। तो अगर इसको
डिक्रीजिंग करंट को अपोज करना है तो इसको करंट को सेम डायरेक्शन में जनरेट करना पड़ेगा, खुद को एक बैटरी में कन्वर्ट करके। एंड सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि करंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले हम लैंग्वेज यूज नहीं करते ना सपोर्ट की, कभी भी हम तो हमेशा क्या बोलते हैं कि अपोज कर रहे हैं। तो कम होते हुए करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो इस तरीके से अपनी पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। और एक बार जब आपको बस ये बात समझ में आ जाती है, देखो वैल्यू तो बहुत आसान है, वैल्यू में तो आप माहिर ही हो जाते हो। VL की वैल्यू तो फिर से L इंटू डी आई अपॉन डी टी है, तो वो तो सेम ही वैल्यू आ रही है, दैट्स 2 मिली हेनरी एंड इनटू 2000 एम्पियर पर सेकेंड, तो वापस से 4 वोल्ट आ गई है। सो दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको किस तरीके से आपको उसको सर्किट में फिटिंग करना है वो आपको समझा दिया है। ये डीसी सर्किट्स हैं, ये एसी सर्किट में इंडक्टर इस तरीके से बिहेव नहीं करता है। ये बिहेवियर जो इंडक्टर का हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ डीसी सर्किट्स में है, कंफ्यूज मत करना। कुछ लोगों ने एसी सर्किट कर लिए होंगे स्कूल में, सो आप कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी। राइट नाउ द इंडक्टर बिहेवियर व्हिच वी आर स्टडीइंग इज सपोज्ड टू बी इन द डीसी सर्किट, राइट। सो दिस इज द एम एंड दिस इज द पॉइंट है ना। अब यहाँ से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये शुरू हो जाते हैं, वीएम लो से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, सो +2 वोल्ट आ जाएगा। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, सो -1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर लो से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, सो +1 वोल्ट आ जाएगा। और फिर इंडक्टर की बारी आती है, उसकी वैल्यू 4 वोल्ट है, फिर से लो से हाई जा रहे हैं, सो +4 वोल्ट आ जाएगा। फिर हम हाई से लो चले गए, कहाँ चले गए, हाई से लो चले गए, तो फिर से -4 वोल्ट आ जाएगा एंड वी फाइनली रीच द पॉइंट एन। देख लेते हैं कुछ कैंसिलेशंस को, दे 4 and 4 कैंसल्ड है और ये 2 and 2 कैंसल्ड है। So we are getting the value for the Vm minus Vn as equal to -1 volt as a result. So this is how we are going to solve in the questions of the inductor. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडक्टर को डिजाइन कैसे करा जाता है। क्या करा जाता है, डिजाइन कैसे करा जाता है। ये तो हमने लगा दिया ना इंडक्टर। अब इसके अंदर जो L की वैल्यू है वो आती कहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे 2 मिली हेनरी यूज करी, तो ये वैल्यू आएगी कहाँ से। जैसे कैपेसिटी की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड है, तो वैल्यू आती कहाँ से, तो डिजाइन करके। तो वैसे ही हमें सेल्फ इंडक्शन एज अ प्रॉपर्टी, एज अ टर्म, एज अ वैल्यू डिजाइन करना है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी शुड हैव सम आइडिया फॉर दैट, और आइडिया को हम बोलते हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स टू कैलकुलेट अ सेल्फ इंडक्शन, ऐसा आर्टिकल हमने कैपेसिटेंस में भी करा था, स्टेप्स टू कैलकुलेट अ कैपेसिटी। रिवाइज करते हैं क्या किया था। सबसे पहले चार्ज को एज्यूम करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, तो हम चार्ज को एज्यूम करते हैं। और चार्ज को एज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके एसोसिएटेड फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और फाइनली हम यूज करते हैं एज अ रिलेशन दैट कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। सेम मैनरिज्म है हमारे यहाँ पे स्टेप्स है। लेट्स बिगिन विद द स्टेप्स। We have the step number 1 to begin with. Assume the current across the coil. मतलब coil में जितना करंट आपको पास इन करवाना है फ्यूचर में, आप सोचते हैं, आप इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस L is independent of current. Then comes the step number 2. So what is the step number 2? जो भी करंट आपने एज्यूम करा है उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है। सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द करंट अक्रॉस द कॉइल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास बड़े सारे टूल्स हैं। यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, याद ही होगा आपको, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, and using the Biot-Savart's law. Right, using this by Ampere circuit law and the Biot-Savart's law, इसको यूज करके आपको मैग्नेटिक फील्ड को इवैल्यूएट करना है। एंड देन द स्टेप नंबर 3, अब करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, नेक्स्ट क्या है, फ्लक्स को। क्या आइडिया तो हमारा बेसिकली फ्लक्स का ही है यहाँ पे, और वेरिएशन ऑफ फ्लक्स का है। फिलहाल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कैलकुलेट द नेट फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एरिया होगा, तो फ्लक्स आ जाएगा। तो आपको फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स क्यों, क्योंकि कॉइल की बात हो रही है,
तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो n को नहीं भूलें, हम ध्यान रखें, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं नेट फ्लक्स। और जब आप ये नेट फ्लक्स निकाल लें, दैट इज अ फाइनाइट, स्टेप 1 में हमने करंट एज्यूम करा था एज I. So we finally has the result with us in the final step, that is a step number 4. The result is going to be with us. And what is the result? That is evaluate the L, self-inductance. कैसे? Using L is equal to the net flux upon I, that is N into phi upon I. और इस तरीके से हम क्या करेंगे, L को evaluate कर लेंगे. This is our prima facie objective to evaluate the self-inductance. फिर हम देखेंगे evaluate करने के बाद कि वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है. किस पे नहीं करता है बता दिया मैंने, करंट पे डिपेंड नहीं करता है. So let's begin this and begin this particular idea by using the self-inductance of a solenoid. So we have a short derivation over here that is for finding the self-inductance of a solenoid. So let's find out the self-inductance of a solenoid. So how do we do it? By assuming the current across this. So हमने assume कर लिया कि I current इसके across moving कर रहा है. So steps लिख लेते हैं. So as per the step number 1, we have the I current is passed through the solenoid coil. तो हमने एज्यूम कर लिया कि इतना जो करंट है वो जो है पास कर रहा है. ओके फाइन. अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे. तो स्टेप नंबर 2 पे अब जो करंट आपने पास करवा ही दिया है तो क्या करें, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें. सो हम इसको आइडियल सोलिनॉइड ले लेते हैं, ज्यादातर तो हम इसी को यूज करते हैं. सो फॉर एन आइडियल सोलिनॉइड द वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, सो बी ड्यू टू I across the coil, जितना करंट उसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है. So what is the value for the B equal to, that's mu naught into N into I, small n of course. Small n आपको याद होगा turn density, that is capital N upon L, number of turns per unit length. जितनी ये टर्म स्ट्रॉन्ग होगी, करंट तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर नहीं सकते कभी भी, है ना. तो स्मॉल n जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. सो mu naught into small n into I. Perfectly fine. Then how do we proceed further? अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, अब चाहे तो उसको पूरा भी लिख लो, म्यू नॉट इनटू कैपिटल N अपॉन L इनटू I. फाइन, कैपिटल N दिखना चाहिए आपको. मूविंग हेड विल बी द स्टेप नंबर 3. अब आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना, बहुत ही आसान स्टेप्स है, बहुत ही ज्यादा बेहद आसान स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेटिंग द फ्लक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स विल बी इक्वल टू B इनटू एरिया. So area of this, so area मतलब ये एक एरिया आप यूज करेंगे इतना वाला, दिस एरिया, इसके अक्रॉस आपका ये फ्लक्स कट हो रहा है. सब कुछ एक ही कॉइल में हो रहा है, कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, एक ही कॉइल है, उसी कॉइल में करंट है, उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी कॉइल में वेरिएशन ऑफ करंट है, उसी कॉइल में वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है. तो सारा कुछ एक ही कॉइल में है, तो सब कुछ सेल्फ प्रॉपर्टी है, कोई भी किसी और नेबरिंग कॉइल से नहीं आई है, इसलिए इस आर्टिकल को सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है. That's a property of operation is developing because of the changes in the self circuit. दोबारा से, the property of opposing the variation of current is developing because the changes in the self circuit. खुद के वजह से ही, hence the name self inductance. फ्लक्स कितना है, B into A. एक इसका है एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल, पर एक कॉइल तो है नहीं, तो बड़ी सारी है इसमें. कितनी है, अरे n नंबर ऑफ टर्न्स है. अच्छा, तो सर नेट फ्लक्स लिखना था, बिल्कुल, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय n कर देंगे. वेरी गुड. सो B की वैल्यू प्लेस इन करो, दैट इज म्यू नॉट इनटू N अपॉन L इनटू I एंड इनटू एरिया एंड इनटू N. सो व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द नेट फ्लक्स इक्वल टू, दैट बिकम्स म्यू नॉट इनटू N स्क्वायर इनटू A अपॉन L एंड इनटू I. And I think our expression has been made and the derivation is completed. Reason because net flux किसके बराबर होता है, net flux is supposed to be equal to L into I, and therefore we can compare and get the value for the self inductance of the solenoid. And on comparison, the value for the self inductance is coming out as mu naught into N square upon L into A as expression for the self induction of a solenoid. अब आप कैटेगोरिकली क्या कर सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो कि सर चलो अब देख के बताएं
कि सर ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पैरामीटर ऑन विच द एल इज डिपेंडिंग अपॉन, लिखें साथ में इसको, बिल्कुल लिखते हैं, दैट द फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स अपॉन, कि एल किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स अपॉन इज, नंबर वन फैक्टर इज सपोज टू बी द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, या मीडियम पे, सो दैट इज अ मीडियम, तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट पे। कोई स्ट्रॉन्ग मीडियम आएगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक मीडियम आएगा, मतलब आप एक सॉलिनॉइड एयर कोर की जगह सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, तो वहां पे परमिएबिलिटी की वैल्यू राइज इन हो जाएगी, तो सेल्फ इंडक्टेंस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी आ जाएगी। द परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्चुअली वो आर्टिकल क्योंकि अभी लैप्स्ड आउट है, इस साल डिलीटेड पोर्शन में है। सो जो फेरोमैग्नेटिक आर्टिकल होता है उसके अंदर जो परमिएबिलिटी होती है वो मिनिमम 1000 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू द एयर। कितनी होती है? मिनिमम 1000 टाइम्स होती है, which मीन्स कि अगर आपने एक फेरोमैग्नेटिक रॉड, एक सॉफ्ट आयरन रॉड अगर आपने डाली, सॉफ्ट आयरन की बात कर रहा हूं, अगर हार्ड आयरन यूज करोगे तो परमिएबिलिटी 10 पावर 5 टाइम्स आती है। कितनी बोली मैंने? 10 पावर 5 टाइम्स आती है। हम कम वाली यूज कर लेते हैं, सॉफ्ट बातें करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं 10 पावर 3 टाइम्स, सो द इंडक्टेंस कैन बिकम 10 पावर 3 टाइम्स। हाउ स्ट्रॉन्ग दिस प्रॉपर्टीज आर बेसिकली, तो हम बहुत जगह यूज करते रहते थे, पहले तो बोलते ही रहते थे कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज करो करो करो। अब ये भी पता है कि उससे करने से अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 पावर 3 टाइम्स याद रखिएगा दिमाग में। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ये आपको फील करवाना था। सो सेकंड फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर, लिख तो रहे हैं बेटा, not proportional to number of turns, proportional to square of the number of turns, right? So the L over here is supposed to be proportional to the n square. ये आपका second feature है, n पे proportional नहीं है, n square पे proportional है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और किस पे डिपेंड हो रहा है? ज्योमेट्री। बाकी टर्म्स क्या है? एरिया और लेंथ। एरिया और लेंथ से क्या पता चलता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, साइज ऑफ द कॉइल, सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कॉइल, साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी सर्कुलर कॉइल होगी तो उसकी लेंथ थोड़ी आएगी, तो फिर एल वाला फीचर नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया। हाँ, एरिया ज्यादा होगा इसका, हाँ फिर एल की वैल्यू ज्यादा आएगी। लेंथ कम होगी, हाँ सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। अच्छा, आइडियल सोलेनॉइड में हमेशा बोलते थे लेंथ थोड़ी छोटी रखो। तो साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द एल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन। ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, उस साइज एंड शेप के अंदर कवर हो जाता है। और किस पे नहीं डिपेंड करता है वो हमने बता चुके हैं। सो एल इज, फिर लिख देते हैं यहाँ पे, जब डिपेंडेंट लिखा है तो इंडिपेंडेंट भी लिख देते हैं। एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट अक्रॉस द कॉइल। ग्रेट, तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और इजी आउट भी कर सकते हो। क्या इजी आउट कर सकते हो? देखो, कैन यू राइट दिस लाइक n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इनटू a इनटू l? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल, l से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इनटू n अपॉन l का स्क्वायर एंड इनटू a इनटू l। a इनटू l को कैसे लिखे? वॉल्यूम लिख ले अभी। ओ ये तो सही है, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, और कैपिटल N अपॉन L को कैसे लिखे? स्मॉल n लिख लो। सो क्या बढ़िया एक्सप्रेशन बन गया। देखो, म्यू नॉट इनटू स्मॉल n स्क्वायर इनटू v, ये भी एक्सप्रेशन काम करेगा फॉर द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड L सबस्क्रिप्ट s। ये भी एक रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज फॉर द केस ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल। अब कॉइल के तो विभिन्न शेप होते हैं, और सबसे इजी आउट कॉइल कौन सी होती है? सबसे इजी आउट, देखो सोलेनॉइड तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉइल है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है एज अ परमानेंट बार मैग्नेट, है ना। तो इजी आउट कॉइल क्या होती है? सर्कुलर। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है, दैट इज फॉर फाइंडिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। सो दिस इज अ सर्कुलर कॉइल फॉर यू। दोनों तरीके से रख के दिखा रही है मैंने, एक वर्टिकल अरेंजमेंट, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और अंदर ये फील्ड लाइंस जा रही है लाइक दिस। Okay, so let's derive for this. That is a self-inductance of a current carrying coil. हम सिंपल coil बोलेंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि L जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से। So steps begin करते हैं। The step number one is supposed to be to assume the current. So assume I as a current, और कैसे फ्लो करना चाहिए वो देखो, यहाँ से पास इन करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। यूजुअली ऐसे दिखा देते हैं क्लोज, और ये भी तो बताएं कि करंट आया कहाँ से वहां पे। तो थोड़ा सा स्लॉट ओपन होता है जहाँ पे आप
बाहर से बैटरी वगैरह लगा सकते होंगे ना, यहाँ पे बैटरी अरेंजमेंट होगी जिससे करंट आ रहा होगा, ये सर्किट बना होगा, है ना, इस तरीके से. सो दिस इज हाउ वी शुड बेसिकली शो इट. कई बार नहीं दिखाते हम ऐसे ही दिखा रहे थे कि क्लोज लूप है. सो स्टेप 1, द करंट इज I passing through the coil, circular coil of course. दोनों कॉइल हैं, सोलिनॉइड भी, ये भी एक कॉइल ही है. शेप्स डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो इंडक्टेंस डिफरेंट आएगी, पक्का बिलीव है. स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज टू इवैल्यूएट द वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे थोड़ा ट्रिकीनेस आ जाती है. क्या ट्रिकीनेस आती है? ये डायग्राम मैंने क्यों दिया आपको यहाँ पे, ये पिक्स क्यों दिए आपको? इसलिए दिए ताकि आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है. क्या बोला, दोबारा से बोलता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट अ फ्लक्स माइंडिंग, वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट अ फ्लक्स. सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू कि हम ना जो कॉइल है उसको थोड़ी स्मॉल रखें. क्या रखें? स्मॉल रखें. तो देयर शुड बी अ स्मॉल कॉइल बेसिकली. सो इट कैलकुलेटिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्मॉल कॉइल. स्मॉल कॉइल जैसे हमने आइडियल सोलेनॉइड बोला ना, सेम तरीके से स्मॉल कॉइल. स्मॉल कॉइल का फायदा क्या होगा, मतलब मान के देखो कि अगर वो कॉइल आपकी इस साइज की होती है ऐसी, तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स लाइंस होती है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती. अगर ये स्मॉल कॉइल होगी, अगर लार्ज कॉइल होगी तो यार फिर फील्ड लाइन है वो अजब तरीके से, अजब गजब तरीके से बिहेव करेंगे, फिर वो और पॉसिबल एंगल्स बना देंगे, फिर फ्लक्स की कैलकुलेशन बेहद मुश्किल हो जाएगी, तो फिर वही मामला मुश्किल हो जाएगा. सो हेंस वी शुड यूज द करेक्ट लैंग्वेजेस. जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस किसका निकाला, आइडियल सोलेनॉइड का, अब किसका निकाल रहे हैं, फॉर अ स्मॉल कॉइल. सो लेट्स डू इट माय डियर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल कॉइल, तो मैं डायग्राम भी स्मॉल कॉइल का बना देता हूँ. सो दिस इज माय स्मॉल कॉइल ओवर देयर, और इसके अंदर जब आपने करंट को पास इन करा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से इसके अक्रॉस ये फ्लक्स जनरेट हो गया. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बिकॉज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सेम कॉइल. अब जो कॉइल है उसका अपना रेडियस होगा, उस रेडियस को कैपिटल R इंट्रोड्यूस कर देता है. जितना करंट पास कर रहा है दैट इज इक्वल टू I. N is supposed to be the number of the turns. So these are the specifications of this particular small coil. और अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को चेक कर रहे हैं. So the B due to the current across the coil. तो अब ये तो एम्पियर लॉ से हमें आता ही है, सो लिख भी सकते हो आप, उनको इज्जत दे सकते हो. दैट इज बाय यूजिंग द व्हिच लॉ, बाइट-सावर्ट्स लॉ लिख लें, बाइट-सावर्ट्स लॉ. सो बाय यूजिंग द बाइट-सावर्ट्स लॉ हमें रिजल्ट पता है, B is supposed to be mu naught into Ni upon 2R. भारी भरकम टर्म है ना, बेसिक मुद्दा तो यही है ना. सो B equal to mu naught Ni by 2R, ये आ गया. ओके जी. स्टेप नंबर 3, step number 3 is to calculate a flux. No, calculate a net flux. So what is supposed to be the net flux? Supposed to be equal to, that is equal to B into the area. और देखो n कैप इसका इसी डायरेक्शन में आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू भी 0 है, तो फ्लक्स मैक्सिमाइज है. सो दैट इज B into A एंड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स आल्सो, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्न्स होंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही टर्न है. तो करेक्ट तरीके से अगर आप कॉइल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको दिखाना चाहिए था ना कि इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स है. आप बोलोगे सर आपको दिखाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे दिखाते ना आप, इस तरह से बहुत सारी टर्न्स हैं ऐसे, है ना. सो हर एक के अंदर सेम लाइंस जाएंगी, तो इसका मतलब जितना भी नेट फ्लक्स आएगा दैट इज सपोज टू बी पासिंग थ्रू ईच ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्न. इस वजह से आपको n से उसको मल्टीप्लाई करना होता है. आप रट्टा तो मार ही लेते हो, पर विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होती है. So that is equal to mu naught into Ni upon 2R into the area. अब area of the single loop, area of the single loop कितना होगा, pi r square and into n. I think the question is over. देखो ये बहुत लंबा कर रहा हूँ, अगर ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है तो this can be done like this my dear. मतलब मेंटली भी डन हो जाएगा क्वेश्चन. करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni by 2R है, उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन. फ्लक्स इक्वल टू n into I, L into I लिख के आंसर आ जाएगा. सो दिस इज लाइक अ डेरिवेटिव स्टेप्स. हम सीख रहे हैं बातों को, तो इस वजह से स्टेप्स लिख रहे हैं, और वेरी सूनर यू विल बी एबल टू डू इट इन अ क्विक फ्लैश ऑल्सो. अभी ये जो रिजल्ट है दैट इज अ नेट फ्लक्स, दिस बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n स्क्वायर, आगे देखो, इनटू पाई इनटू r, एक r कैंसल्ड है,
carefully, and divided by 2 and into I. That's it, and that should be equal to L into I, and on comparison we get the value for the self-inductance. And so the value for the self-inductance of the circular current carrying coil, अब current हो या ना हो, self-inductance तो होगी, है ना? So the value for the L becomes equal to mu naught into n square into pi into r upon 2. That becomes a self-inductance of the circular coil as an expression over there. So you wish to memorize it, आपकी choice है. Otherwise, it can be just calculated in 10, 15 seconds or 30 seconds at max. So it all depends upon you. अब चाहते हैं रट्टा मारना उसको, तो मैंने बॉक्स में डाल दिया और कलर भी कर देता हूँ, such that you can keep it in your memory, or you can just follow these simple, easy steps for evaluating the result. Current assume करो, magnetic field देखो, flux देखो, net flux देखो. मैं net flux बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम भूल जाते हैं, कई बार मैंने देखा है students tend to forget this, and therefore I'm again and again telling net flux, और n को अलग से दिखाता हूँ मैं बार बार कि आपको n से मल्टीप्लाई करना, इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में भी n है, और जब आप नंबर ऑफ टर्न्स के क्रॉस फ्लक्स चेक कर रहे हैं तो भी एक एक्स्ट्रा n आता है, तो दोनों फीचर से n की वैल्यू आती है, और हमारी बात फिर से एक बार सच हो जाती है कि जो l की वैल्यू है that's proportional to n square. बहुत इजी होता है इस लैंग्वेज को मिस इंटरप्रेट करना कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है. बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है, पर स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है. दैट इज सपोज्ड टू बी द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग एंड राइटिंग इवन. तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं. बाकी साइज पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल आर पे डिपेंड कर रही है. देखो एज अ प्रॉमिस, अब इसमें लेंथ नहीं आ रही है क्योंकि अब इसके डायमेंशंस में कहीं लेंथ नहीं था, and that's where the value for the L has been redesigned, और ये different आएगी in compared to the previous value. So which is basically correct thing ना, कि होगा हमारे पास spherical capacitor है, cylindrical capacitor है, parallel plate capacitor है, उसमें भी rectangular plates हैं या circular plates हैं या square plates हैं, तो value for the capacitance is going to come out to be different, and so over here the value for the inductance is coming out to be different. And further similarity क्या है कि capacitance चार्ज पे डिपेंड नहीं करता था, और यहाँ पे इंडक्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता. और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है. सुनिएगा ध्यान से, कैपेसिटेंस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस. The behavior of the capacitor, the energy across the capacitor is because of the static charges on the plates of the capacitor. While when we are talking about the inductor, the idea changes, my friends. The idea changes because of the current. So there must be electrodynamical behavior. Then only you can design this device. नहीं तो रखे रहिए, अगर करंट नहीं आ रहा, बत्ती गुल है, तो करंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है. हालांकि हम बार बार बोलेंगे that L is not going to depend upon the magnitude of the current. बिल्कुल सही बात है, लेकिन its behavior will be only activated when there is current, and even steady current से नहीं, variation of current से. वो DC circuit में सिर्फ दो ही instant पर होता है. किन दो instant पे? While closing the switch and by opening the switch. It's very tricky condition. इस tricky condition पे जब आप किसी coil को develop करते हैं, दोबारा से बोल रहा हूँ, इस tricky condition पे जब आप किसी coil को develop करते हैं, उसी coil को हम बोलते हैं induction coil. So what is basically an induction coil? Induction coil जो होती है वो यही होती है which can generate huge value of the potential difference. So it's a coil which generates high values of potential difference. कैसे? By opening and closing the switch in the DC circuit. पर ये काम करना पड़ता है, आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि बार बार स्विच ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज हो. क्या होगा? ट्रेमेंडस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू L into di upon dt. क्या है? L into di upon dt मैग्नीट्यूड में. भैया बैटरी चाहे सीधी लगाओ उल्टी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पोटेंशियल डिफरेंस सही है ना, तो लेंस लॉ होता होगा, सही है, पर प्रैक्टिकली क्या है? हमें क्या लेना देना? बैटरी सीधी लगाओ उल्टी लगाओ, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है. हमारे घर में बत्ती आ रही है, हमें क्या मतलब कि भाई पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? हमें तो लेना देना किससे है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कितना एनर्जी आ रही है. तो फैराडे लॉ इसलिए ऊपर रहता है हमेशा. पहले फैराडे लॉ इसलिए आता है क्योंकि बेसिक आइडिया किसका है? मैग्नीट्यूड का. डायरेक्शन अपने आप को बताने की सेंसेस है. कब तक? जब तक डीसी है. और अगर आपको याद नहीं हो तो बता दूं, हमारे घरों में एसी आती है,
और बड़ी 2-4-5 दिन के अंदर हम वहीं पे कदम रखने वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर। VL की वैल्यू कितनी है? L इंटू DI/dt, ठीक है ना। अब देखो मुद्दा क्या था कि आपको हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना है। क्या करना है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना है। कैसे करें? दो टर्म्स है, दोनों के साथ खिलवाड़ करो। दो टर्म्स मतलब एक तो DI/dt, ये कब ज्यादा होगी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्विच पे। और L कैसे ज्यादा होगा? डिजाइन करो ना, डिजाइन है। DI/dt डिजाइन करा ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्विच एट 2000 एम्पियर पर सेकेंड, 4000 एम्पियर पर सेकेंड। वैल्यू बढ़ा रहे हो ना आप, क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द स्विच इज रिक्वायरिंग मिली सेकेंड ओनली। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो आप कमाल कर सकते हैं। कमाल मतलब सर कितना कमाल कर सकते हैं? बेटा इतना कमाल कर सकते हो कि म्यू नॉट की वैल्यू को 10⁻³ टाइम्स कर सकते हो चेंज बाय इंट्रोड्यूसिंग द आयरन कोर, and so the L can be pretty large, DI/dt pretty large. So what about VL? Oh, pretty large. So we can introduce a potential difference of around 50,000 volts using the induction coil, which can be used for smelting, that is used for basically creating the induction furnaces also, where the so much high potential difference will be used for creating the induction furnace, where you can even melt the iron or steel and to convert them into desirable shapes. और वो आइडिया किससे डेवलप हुआ? अरे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एल को आज के लेक्चर से जाते जाते एक और दर्जा दे जाते हैं अपने दिमाग में। एल एज अ टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। हमने जिक्र तो पहले भी छेड़ा था इनर्शिया का, पर पूरी बात कर लेते हैं। एल इज सपोज टू बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, और कई बार हम इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया? इसका मतलब ये मतलब हुआ कि जो रोल इनर्शिया प्ले करता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ऐसी कौन सी टर्म है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो कि सेम रोल प्ले करती है? हमने कहा भाई ये इनर्शिया क्या करता है सर? अपोज करता है। कुछ भी हो अपोज करेगा। आप मोशन में जाना चाहोगे, मोशन को चेंज करना चाहोगे, अपोज करेगा। रेस्ट के स्टेटस को चेंज करना चाहोगे, अपोज करेगा। डायरेक्शन को चेंज करना चाहोगे, अपोज करेगा। ये भी तो वही कर रहा है, एंड देयरफॉर it is known as an electrical analog of the inertia, and that's the answer is supposed to be the self inductance, that is L. Oh, that's pretty clear, sir. That's pretty clear. तो आज के लेक्चर में हमने काफी सारी बातें सीखी। Of course, कल इस बातों को और कंटिन्यू करेंगे। क्या बातें सीखी है हमने? That we have a new device coming our way. हर चैप्टर के एंड में एक बेसिकली डिवाइस आती है एज अ प्रॉमिस, और इस बार भी हमें एक डिवाइस मिली, और वो डिवाइस क्या है? दैट्स एन इंडक्टर, और इंडक्टर किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है? दैट इज इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस के पीछे की कहानी क्या है? फैराडे लॉ एंड द लेंजीज लॉ। बाकी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए साइन आउट करते हैं। बाय एवरीवन।